Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic 11 October. Today's current affairs Hindi and English newspaper analysis. Asterisk 1. Recently, Maria Corina, leader of which country, was awarded the Nobel Peace Prize 2025? हाल ही में किस देश की नेत्री मारिया कोरिना को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? Answer, Venezuela / Asterisk 2. Justice Somen Sen was recently sworn in as the Chief Justice of which High Court? हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? आंसर, मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय उच्च न्यायालय। Asterisk 3. Where did Defense Minister Shri Rajnath Singh hold a bilateral meeting with the Australian Foreign Minister on October 9, 2025? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? आंसर, कैनबरा में। Asterisk 4. Which country recently successfully conducted the world's first live underwater interview? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले अंडरवाटर लाइव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? आंसर, पलाउ। Asterisk 5. How many AYUSH products will the Dravya Portal, an initiative of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, list in the first phase? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल द्रव्य पोर्टल पहले चरण में कितने आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा? आंसर, 100 आयुष प्रोडक्ट्स, 100 आयुष पदार्थ। Asterisk 6. How many crores have the combined assets under management of the National Pension System, NPS, and Atal Pension Yojana, APY, reached by October 2025? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एनपीएस, और अटल पेंशन योजना, एपीवाई, की संयुक्त प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां अक्टूबर 2025 तक कितने करोड़ पहुंच गई हैं? आंसर, 16 रुपए लाख करोड़, 16 लाख करोड़। Asterisk 7. Where was the mouse signing ceremony held recently during the Traffic Infratech Expo 2025? हाल ही में कहां ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया? आंसर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। Asterisk 8. Who recently organized a brainstorming session on providing all-weather tap water in the high-altitude areas of the Himalayas? हाल ही में किसके द्वारा हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसमों में नल के पानी की आपूर्ति पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया? आंसर, नीति आयोग। Asterisk 9. What inspired the design of the Sabarmati HSR station on the Mumbai-Ahmedabad bullet train corridor? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का साबरमती HSR स्टेशन का डिजाइन किससे प्रेरित है? आंसर, महात्मा गांधीज स्पिनिंग व्हील, महात्मा गांधी के चरखे से। Asterisk 10. Which state is organizing a Swadeshi Mela to promote indigenous products? इस राज्य द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है? आंसर, उत्तर प्रदेश। Asterisk 11. Where was India's first commercial electric truck battery swapping and charging station established? भारत का पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? आंसर, सोनीपत।
*12. Where did the Ministry of Mines successfully organize a roadshow for the sixth phase of auction of critical and strategic mineral blocks? खान मंत्रालय ने कहा महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के छठे चरण के लिए एक रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आंसर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। *13. Who recently inaugurated and laid the foundation stone for Delhi government development projects worth approximately 1,816 Indian rupees crore? हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली सरकार की लगभग 1,816 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है? आंसर होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। *14. In which city did Prime Minister Narendra Modi recently address the Global FinTech Fest 2025? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया है? Answer: Mumbai/. *15. Who recently launched India's National Red List Roadmap at the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi? हाल ही में किसने अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में भारत के राष्ट्रीय रेड सूची रोडमैप का शुभारंभ किया है? आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह, राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। Direct hit static GK MCQ. *16. The causes of inflation can be broadly divided into which of the following two categories? मुद्रास्फीति के कारणों को मुख्य रूप से निम्नलिखित किन दो भागों में बांटा जा सकता है? आंसर डिमांड फैक्टर्स एंड प्राइस पुश फैक्टर्स, मांग कारक और मूल्य वृद्धि कारक। *17. When was the Reserve Bank of India established as per the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार कब हुई थी? Answer: 01 April 1935/011935. *18. Kolkata, the capital of the state of West Bengal, is a major city situated on the eastern bank of which river? पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता किस नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ एक प्रमुख शहर है? आंसर हुगली रिवर, हुगली नदी। *19. Whose signature is on the 1 rupee note? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, केंद्रीय वित्त सचिव। *20. The Indian Statistical Institute, ISI, is a public research university headquartered in Kolkata? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर कोलकाता, कोलकाता में। #daily_current_affairs_at_a_lands. अंतर्राष्ट्रीय चीन का दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट। चीन ने गोबी डेजर्ट में दुनिया का पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट बनाया है जिसमें 2 सोलर टावर्स एक ही टरबाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें 27,000 मिरर्स सूर्य की किरणों को 2 टावर्स पर केंद्रित करते हैं। यह प्लांट रात में भी बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। World map Gobi Desert. स्थान एशिया, चीन और मंगोलिया।
क्षेत्रफल 1,295,000 किलोमीटर सुपरस्क्रिप्ट 2। अर्थ गोबी शब्द मंगोलियन भाषा का है जिसका मतलब है वाटरलेस, बिना पानी का। राष्ट्रीय स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेश मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और आत्मनिर्भर भारत के विचार को प्रोत्साहित करना। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। AIIMS दिल्ली में पहली बार रोबोट सहायता प्राप्त किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। यह भारत में पहली रोबोटिक तकनीक से की गई किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी है। भारतीय सेना द्वारा सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम को स्वीकृति। यह प्रणाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा विकसित की गई है। रेंज 3000 मीटर। उद्देश्य ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई प्रणालियों को निष्क्रिय करना। BEL की जानकारी। स्थापना 1954। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। अध्यक्ष मनोज जैन। मंत्रालय रक्षा मंत्रालय। पुरस्कार और सम्मान। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। प्राप्तकर्ता मारिया मचाडो, वेनेजुएला की विपक्षी नेता। कारण लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए। 48वीं मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता। विजेता शैरी सिंह, भारत। आयोजन मनीला, फिलीपींस। विशेषता पहली बार भारत ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। Orchard Times Higher Education World University Rankings 2026। भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंक IISc बेंगलुरु 201-250 ग्रुप में। शीर्ष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, UK। रैंक की गई कुल संस्थाएं 191। एशिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी सिंगुया यूनिवर्सिटी, चाइना। खेल पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। खिलाड़ी विनय, भारत। वर्ग 72 किलोग्राम जूनियर। पदक स्वर्ण पदक। महत्वपूर्ण दिन। Girl International Day of the Girl Child, 11। स्थापना 2011 संयुक्त राष्ट्र द्वारा। उद्देश्य लैंगिक असमानता को समाप्त करना और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना। Black Small Square 2025, * The girl I am, the change I lead, girls on the front lines of crisis *। छत्तीसगढ़ विशेषांक। संसद में बृजमोहन अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई। प्राक्कलन समिति के बारे में। स्थापना 1950। संरचना 30 सदस्य हर वर्ष लोकसभा सदस्यों में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। कार्यकाल 1 वर्ष। पात्रता मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते। मुख्य कार्य मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधारों पर रिपोर्ट देना। दक्षता लाने हेतु नीतिगत सुझाव देना। सरकारी व्ययों की समीक्षा करना। प्राक्कलनों बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का स्वरूप सुझाना।
सिफारिशें लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं और संबंधित मंत्रालय को 6 माह में कार्रवाई करनी होती है। धान खरीदी अभियान 2025-26। राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। खरीदी सीमा प्रति एकड़ 21 क्विंटल। पारदर्शिता एवं सुविधा। टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था। किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। कुपोषण प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान। मोहलामानपुरम बागड़ चौकी जिला को कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट व नवाचारी पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। यह सम्मान नीति आयोग द्वारा आयोजित पॉलिसी फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज में स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान पाने पर मिला। कलेक्टर तुलिका प्रजापति को मसूरी स्थित LBSNA में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने सम्मानित किया। सम्मान जिले की पहल सैम MAM इन चिल्ड्रेन को मिला। यह योजना गंभीर व मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान, उपचार और निगरानी पर केंद्रित है। Rolled up newspaper breaking news. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 11 अक्टूबर शनिवार। एक PM मोदी आज 35,440 रुपए करोड़ की कृषि योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें PM धन धान्य कृषि और दाल उत्पादन मिशन शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। 2 उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थियों का देश में स्वागत, लेकिन अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, शाह का सीधा संदेश। 3 गृह मंत्री ने कहा है कि देश में धार्मिक आधार पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रजनन दर की वजह से नहीं, बल्कि सीमा पार से हुई घुसपैठ के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि 24.6% की दर से हुई है। इसका कारण प्रजनन दर नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ रहा है। 4 शाह ने जनगणना के आंकड़े देते हुए कहा कि 1951 में देश में हिंदू 84% थे और मुसलमान 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% हो गए और मुस्लिम समुदाय की आबादी 11% थी, जबकि 1991 में हिंदू 81% और मुसलमान 12.12% हो गए, जबकि 2011 की जनगणना में हिंदू 79% रह गए और मुस्लिम वर्ग की आबादी 14.2% हो गई। इसका कारण फर्टिलिटी नहीं बल्कि घुसपैठ है। 5 देश बेहतर बनाना नागरिकों के अपने हित में। भागवत बोले, RSS पूरे देश और हिंदू समाज के लिए काम। 6 भागवत ने कहा कि अपने देश का निर्माण और उसे बेहतर बनाना हमारा कर्तव्य है। ऐसा कर हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। जो देश अच्छा प्रदर्शन करता है, वह दुनिया भर में सुरक्षित और सम्मानित होता है। संघ के गठन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव हेडगेवार ने नागपुर में संगठन की स्थापना की क्योंकि इस शहर में पहले से ही निस्वार्थ सेवा और सामाजिक जागरूकता की भावना थी। 7 केंद्र बोला, JK के 99.9% लोग सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 6 साल पहले हटी थी धारा 370। 8 भाजपा बोली, कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही।
इससे देश की छवि को नुकसान, कांग्रेस ने कहा था। रूस अब पाक का मददगार। 9 सुप्रीम कोर्ट बोला, पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली के राज्यों ने कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। 10 राजस्थान में खाद वितरण पर लाठीचार्ज, किसानों पर बरसी पुलिस की लाठियां, भगदड़ में कई घायल। 11 बिहार के बाद अब देश भर में सर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव। 12 बिहार एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान आज। बीजेपी के दिलीप जायसवाल बोले, सब लगभग फाइनल है। 13 बिहार में दलबदल का दौर जारी। अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी, अरुण कुमार भी थामेंगे जेडीयू का दामन। 14 अमेरिका चीन में फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर। ट्रंप ने ड्रैगन पर लगाया 100% टैरिफ, 1 नवंबर से लागू। चीन के बीच फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर। ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, जिनपिंग से भी नहीं मिलेंगे। 15 एंड वर्सेस वी, दिल्ली टेस्ट का दूसरा दिन आज। यशस्वी दोहरे शतक के करीब, शुभमन के साथ 67 रन जोड़े, वारिकन को 2 विकेट। Rolled up newspaper breaking news. शनिवार 11 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, रेयर अर्थ पर नियंत्रण रखने के जवाब में अमेरिका का बड़ा ऐलान। सीट शेयरिंग करे नहीं तो कांग्रेस उम्मीदवार उतार देगी, तेजस्वी से बोले राहुल गांधी। 13 अक्टूबर को जयपुर में अमित शाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का करेंगे शुभारंभ। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में की एयर स्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने की कोशिश। बिहार चुनाव 2025, निर्वाचन आयोग ने शुरू किया रिटर्निंग अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण, पारदर्शी मतदान पर जोर। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन ने मांगी गारंटी, केवल घरेलू भारतीय जरूरतों के लिए हो प्रयोग, अन्य को ना बेचें। जुबीन गर्ग के दोनों पीएसओ गिरफ्तार, बैंक खातों में मिला 1 करोड़ का लेन देन, धमकी मिलने के बाद सुरक्षा में लगे थे पुलिसकर्मी। भाजपा बोली, कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही, इससे देश की छवि को नुकसान, कांग्रेस ने कहा था। रूस अब पाक का मददगार। सुप्रीम कोर्ट बोला, पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली के राज्यों ने कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को किया समर्पित। मोहसिन नकवी को वर्ल्ड क्रिकेट से बैन करने की तैयारी में बीसीसीआई। एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागा है पाकिस्तानी। 4 साल बाद भारत काबुल में फिर से खोलेगा दूतावास, तालिबानी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान हुई घोषणा। तेलंगाना, स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट की रोक। अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मुत्ताकी का आश्वासन। भारतीय संस्कृति का अपमान करने वालों को कभी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था, योगी आदित्यनाथ। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा जारी। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1, पड़ोसी पर भड़क उठा पाकिस्तान, दे डाली चेतावनी। भारत यूके ने लॉन्च किया कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, तकनीकी सहयोग की नई मिसाल।
IND वर्सेस वी दिल्ली टेस्ट का दूसरा दिन आज यशस्वी दोहरे शतक के करीब शुभमन के साथ 67 रन जोड़े, वारिकन को 2 विकेट। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? Which high court has appointed Justice Somensen as its 14th Chief Justice? मेघालय उच्च न्यायालय बटा मेघालय हाई कोर्ट। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? Which country successfully conducted the world's first live underwater interview? पलाऊ बटा पलाऊ। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? Which state government is organizing the Swadeshi Mela to promote indigenous products? उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? According to the National Crime Records Bureau, which city is the safest in India? कोलकाता बटा कोलकाता। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? Who has been awarded the 2025 Nobel Prize in Literature? लास्लो क्रासनाहोरकाई बटा लाज़लो क्रासनाहोरकै। नेसोलिंक्स बानाबिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? In which state was a new wasp species named Nesolinx banabitane discovered? पश्चिम बंगाल बटा वेस्ट बंगाल। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? Which country will host the 8th International Solar Alliance Assembly? भारत बटा इंडिया। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? Which state will launch the digital library named Gyan Yagya Mandip? ओडिशा बटा ओडिशा। भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where was India's first electric truck battery swapping station inaugurated? सोनीपत बटा सोनीपत। बिहार चुनाव 2025 में निम्न में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? Who has been chosen for electoral identity in Bihar elections 2025? छोटी चिड़ैया बटा छोटी चिड़ैया। बस एक चाहिए।